Hello students, myself is Simran Makkar and I am a science expert. I hope so you are doing well. अच्छा कर रहे हैं आप लोग और आगे भी बहुत अच्छा करते रहेंगे. In this video मैं आपके लिए लेकर आई हूँ for the class 10 students chapter 9 hereditary and evolution. First of all हम लोग discuss करेंगे हमारे इस chapter के summary points. These are the summary points. First summary point that I am going to discuss with you, it is a variation arising during the process of reproduction can be inherited. Okay, the meaning of this sentence is that जो variation जो है हमारी body में that arising during the process of reproduction, ये कब start होते हैं? ये start होते हैं during the process of reproduction and it can be inherited. Inherited means it's a transfer from one generation to another generation. Second step of this summary point is that these variation may lead to increase survival of the individuals. और ये जो variation जो transfer हुए हैं from one generation to another generation, ये variation कहीं ना कहीं help करते हैं individual की to survive in that particular environment. Third point that is of this summary point, sexually producing individuals have two copies. Okay. Sexually reproducing जो individuals हैं, they have the two copies of the genes for the same trait. If the copies are not identical, identical means similar. अगर copies similar नहीं है तो क्या होगा? The trait that get expressed is called the dominant trait and the another is called the recessive trait. It is very important from the examination point of view and I am writing the star sign here and you have to learn that particular definition. Now, fourth point of this summary point is that trait in one individual may be inherited separately, giving rise to new combination of the traits in offspring of the sexual reproduction. ये जो traits हैं हमारे, चाहे वो dominant trait है चाहे वो recessive trait है, it may be inherited separately, giving rise to the new combination. ये help करते हैं हमारी rising of the new offspring of the trait in the sexual reproduction. Next point, sex is determined by the different factors. These are the factors with the help of which we can determine the offspring. It is that in human beings, the sex of the child depend upon the whether the paternal chromosomes. We know that in the male there are X chromosomes and for the boys it is Y chromosomes. It is clear to all of you. It means sex is determined by the different factors in the various species. Now, the next point of this summary point is variation in the species may confer survival advantages or merely contribute to the genetic drift. Changes in the non-reproductive tissues caused by the environmental factors are not inheritable. Specification may take place when variation is combined with geographical isolation. These are the points that you have to learn it. मतलब इनको समझाने के लिए कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर टिक नहीं है और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको एज इट इज लर्न करने हैं और ये कहीं ना कहीं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आर ट्रेस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेसिंग कॉमन ancestor back in the time lead us to the idea that at some point of time non-living material must have given rise to the life. Next point of this summary chart is evolution can be worked out by the study of not just living species but also fossils. Complex organ may have evolved because of the survival advantage of even the intermediate stage. These are the point of the chapter bio and you have to learn that point absolutely like that. Organs or the features may be adapted to new functions during the course of evolution. For example, feathers are thought to have been initially evolved for the warmth and later adopted for the flight. Okay? Evolution cannot be said to be progress. हम evolution को हम लोग progress नहीं कह सकते from the lower forms to the higher form. Rather, evolution seems to have give rise to more complex body design even while the simpler body design continue to flourish. Next point of this summary is that study of the evolution of human beings indicated that all of us belong to a single species that evolved in Africa and spread across the world in stages, and you have to learn that point of the bio chapter. Now I am going to tell the questions. अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में आते हैं और ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे to get the maximum marks.
देखते हैं हम लोग हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन द असर्शन एंड द रीजन टाइप। मैंने पहले भी आप लोगों को जो आपने वीडियो देखी होंगी उसमें बताया कि इसमें हमारे पास बेटा 4 ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी। हम लोग रीड करते हैं ये जो पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से होते हैं। आप लोगों को 2 स्टेटमेंट्स दी होंगी, वन इज असर्शन एंड सेकेंड इज द रीजन। आप लोगों को दोनों स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है और आप लोग अल्टीमेटली लास्ट में कंक्लूजन निकाल लोगे कि विच वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम पहले असर्शन की तरफ। क्रोमोसोम्स आर नोन एज द हेरिडिटरी व्हीकल्स and the reason of this assertion, the chromosomes are capable of self reproduction and maintaining morphological and physiological properties during the successive generation। ठीक है, ये हमारे पास assertion and reason है और हमारे पास देखते हैं हमारे पास different options क्या हैं। different option है कि हमारा assertion और reason both are true and the reason is the correct explanation for the assertion। बी पॉइंट है हमारा बोथ असर्शन और रीजन तो हमारे ट्रू हैं, बट हम लोग रीजन को असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बोल सकते। एंड द थर्ड ऑप्शन इज दैट असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। एंड द लास्ट ऑप्शन बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों ही गलत हैं। तो हम देखते हैं, हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ लिया। वी नो दैट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। Chromosomes are the thread-like structure that are present in the body of the nucleus and they are formed with the nucleic acid and the proteins। और ये जो chromosomes हैं they are capable for the movement of the genes from one generation to another generation। और assertion में भी यही लिखा है कि chromosomes are known as the hereditary vehicles। मतलब समझ रहे हो ना, hereditary vehicles means ये ट्रांसफर करते हैं जीन्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो नो डाउट असर्शन जो है हमारा वो एब्सोल्युटली राइट है। चलते हैं हम रीजन की तरफ। द क्रोमोसोम्स आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन। ये भी हमें पता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं विच आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे आर कैपेबल फॉर द सेल्फ रिडक्शन, नॉट रिडक्शन, इट इज रिप्रोडक्शन and maintaining the morphological and physiological properties through successive generation। It means both statement are the true and reason is also the correct explanation for the assertion। तो आप लोगों के पास ये जो 4 ऑप्शंस हैं आप लोगों ने उनको देख लिया है, तो हमारे पास बच्चे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। दिस इज द पॉइंट ए, बोथ assertion and reason are the true and reason is the correct explanation for the assertion। आई होप आप लोगों को ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। This is the objective type question। Now I am going to move toward the next question that is a very short answer type questions। और आपने जो मेरी पहले वीडियोस देखी हैं मैंने उसको मैं आपको बताया कि आपको जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसकी लेंथ उतनी ही रखनी है। अगर वेरी शॉर्ट पूछा गया है तो आपको आंसर बहुत ही शॉर्ट देना है। टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है, हमारे पास टाइम लिमिट कम है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा, तो हम लोगों को जो भी पॉइंट्स जो मेन है हमें उसी के ही मार्क्स मिलने वाले हैं, तो हमें बहुत लंबी थ्योरी नहीं देनी है। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है वेरी शॉर्ट फॉर्म में और क्वेश्चन है नो टू इंडिविजुअल्स आर एब्सोल्युटली अलाइक। ये तो आप लोगों का जनरल एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने देखा ही होगा सराउंडिंग में अपने कि कभी भी कोई भी 2 इंडिविजुअल्स दे आर कभी भी दे आर नॉट एब्सोल्युटली अलाइक इन अ पॉपुलेशन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो इसका क्या कारण है कि कोई भी 2 इंडिविजुअल अगर हम किसी भी एक पॉपुलेशन में बात करें दे आर नॉट, दे नेवर बी सेम लाइक दैट। तो रीजन क्या होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर वेरिएशन इन द डीएनए। ओके, जो वेरिएशन है उसमें आप वेरिएशन देख सकते हो डीएनए में। क्यों वेरिएशन आता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। मैं यहाँ पर 2 वर्ड लिख रही हूँ, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। This is because of the crossing over and recombination। This is a recombination word, this is a recombination and the crossing over recombination and the crossing over of DNA copying process। It is clear to all of you। यही कारण है कि हमारे जो 2 इंडिविजुअल्स होते हैं they will never same, because the answer for this question is that because there is a variation of DNA during the crossing over and recombination of the DNA copying process, that is why the 2 individuals can never be look alike during an population। Now I am moving toward the next question of this chapter। This is a case and situation based question। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है, आपको ये पैराग्राफ रीड करना है और इसी पैराग्राफ के ऊपर आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और आपने उनको सॉल्व करना है। जल्दी से पढ़ते हैं हम लोग जो पैराग्राफ है वो क्या है।
Mandels use a number of contrasting visible character of garden peas, round wrinkled seeds, tall oblique short plants, white oblique violet flowers, and so on. He took pea plant with the different characteristics. A tall plant and a short plant produced progeny by crossing them and calculated the percentage of tall or the शॉर्ट प्रोगोनी. देखते हैं हमारे इस पैराग्राफ पे जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से अराइज होंगे. अब आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट. आप लोगों को टॉल प्लांट दे रखा है लाइक दैट. if there is a cross between the tall plant and the short plant like that resulted in progony, that what will be the chances for the tall plant. कितने chances होंगे हमारे tall plants के different options देखते हैं. The tallness is the dominant trait. Second option is shortness is the dominant trait. C option is tallness is the recessive trait, and D option is height of the plant is not governed by the gene T or small t. Okay, तो हमें पता है कि अगर हम लोग इनके बीच में अगर हम क्रॉसिंग करते हैं, क्रॉस बिटवीन दिस प्लांट टॉल प्लांट एंड द शॉर्ट प्लांट, जो हमारे चांसेस होंगे फॉर द टॉल प्लांट इट इज द टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो जो हमारे टॉलनेस के जो चांसेस होंगे फॉर द टॉल प्लांट it will be in the dominant trait. Now I am moving toward the next question of this case and source based questions. ये आप लोगों को एक चार्ट दे रखा है. The following results were obtained by a scientist who crossed the F1 generation of a pure breeding parents for round and wrinkled seeds. देखते हैं हमारे पास यहाँ पर dominant trait, this one is a recessive trait, and this is the number of F2 offspring. Round seeds, wrinkled seeds, and the number that is given to you, it is 7524. From these results, it can be calculated the actual number of the round seeds he obtained was. Since we know that the ratio of the dominant trait to the recessive trait, it is 3:1. Okay. Now if I multiply this 7524 with 3, find out the generation of the pure breeding parent for the round and wrinkled seeds. Okay, from these results it can be concluded that the actual number of the round seeds he obtained was. तो कितने नंबर हैं हमारे पास राउंड सीड के, ये हमने कैलकुलेट करना है. Since we know that the ratio of the round seed to the wrinkled seed, it is 3:1. Okay, so we multiply 7524 into 3 and it should be divided by 4. करिए multiply 7524 with the help of 3. Now we get the answer 3 4s 12. Okay, this one is the answer and it should be divided by 4. हम लोग डिवाइड करते हैं इस नंबर को 4 के साथ. आप भी हेल्प कीजिए मेरी. देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है. इट इज 22572. ओके, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 4. देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास. 4 5 20. ओके, नाउ ओके, आई होप सो कि मैं ठीक कर रही हूँ. आप लोग भी प्लीज देखिए ज़रा. ऊपर से हम कैरी करेंगे 17, 4 4 16 and 4 3 12. ओके, when we multiply this 7524 with the help of the 3, the answer it is number that we obtained, it is 22572, and this number 22572, it should be divided by 4, and when we divide this number then we get this answer 5643. This is the ratio of the round seed to the wrinkled seed, and the number that we obtained from the round seed, it is equal to 5643. So answer of this question, it is 5643. It is clear to all of you. Now I am moving toward the next question of this case in source based question. देखते हैं हमारे पास जो next question है वो क्या है. In peas, a pure tall plant, अगर हम उसकी बात करते हैं, it is crossed with the pure short plant. Okay, the ratio of the pure tall plant to the pure short plant in F2 generation. This is for the F2 generation. अगर हम इनकी बात करते हैं, what will be the ratio? So the answer of this question, it is always 1:1 for the F2 generation. आपने जनरेशन देखना है कि आपको कौन सी जनरेशन में पूछा है. अगर F2 जनरेशन पूछा है, so the right answer of this question, it will be 1:1. चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
अब आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है 2 pea प्लांट, 2 pea प्लांट्स हैं हमारे पास, वन विद द राउंड ग्रीन सीड्स, ओके, एंड अनदर विद द रिंकल्ड येलो सीड्स produce F1 progony that have round yellow seeds. When F1 plant are self, the F2 progony will have new combination of the characters. Okay, choose a new combination from the following. अब आपने इन दोनों पी प्लांट में से क्या करना है, आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। हम लोग जल्दी से देखते हैं कि हमारे पास जो 2 पी प्लांट्स थे उनमें से जो हमारा फर्स्ट वाला था, इट इज राउंड ग्रीन सीड्स, ओके, राउंड ग्रीन सीड एंड अनदर विद द रिंकल्ड येलो। दूसरे वाले में क्या थे, रिंकल्ड येलो। तो देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शंस जो सही बैठेंगे, हमारे पास पहले ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वन इट इज अ राउंड येलो, सेकंड ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, द सेकंड ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज राउंड ग्रीन, थर्ड ऑप्शन इट इज रिंकल्ड येलो एंड फोर्थ ऑप्शन इट इज रिंकल्ड ग्रीन। और अगर हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट पी प्लांट है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, इट इज ग्रीन सीड एंड अनदर इज रिंकल्ड येलो। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो ऑप्शन जाने चाहिए वो इट शुड बी राउंड एंड येलो दैट आर फाउंड इन द बोथ पी प्लांट। तो इट मीन्स जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है इट इज करेक्ट वन। अब इनमें से देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट वन है वो कौन सा करेक्ट बैठेगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस जब हैं ए बी सी डी तो हमारे पास वहाँ पर दो ऑप्शंस करेक्ट करे हुए हैं। तो नेचुरली हमने क्या करना है, ये जो ऑप्शंस आप लोगों को स्मॉल 1 2 3 में ये जो दे रखे हैं, 2 करेक्टर्स आपको ठीक ढूंढने हैं। फर्स्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया जो हमारे पास ये जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे इट विल बी राउंड एंड येलो। अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं कि नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या होने वाले हैं। अब इन्हीं के ऊपर आप लोगों ने फिर फोकस करना है कि जो हमारे पी प्लांट्स हैं इट इज ग्रीन सीड्स and another is wrinkled yellow seeds produce FY progony that have round yellow. अब इसकी characteristics देखते हैं, it is the round yellow and seeds when F1 plants are self, the F2 progony will have new combination of the character. It means जो हमारा fourth option है ये भी कहीं ना कहीं सही होगा, it is a wrinkled green. ओके तो हम लोग देखते हैं कि हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पर करेक्ट आ रहा है। आप लोग डिफरेंट ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर 1 and 2, दिस वन इज 1 and 4. It means this one is the right statement, right answer for this question. What will be the new combination from the following? The new combination जो होगा it is round yellow and wrinkled green. The right option for this question it is 1 and 4th is the right answer for this question. Now I am moving toward the next question. देखते हैं next question क्या है हमारे पास। 2 pink colored flowers on crossing result in 1 red. एक रेड प्रोड्यूस हो रहा है, 2 पिंक एंड 1 वाइट फ्लावर प्रोगोनी। द नेचर ऑफ द क्रॉस विल बी, नेचर ऑफ द क्रॉस हमारी जो नेचर होगी वो कैसी होगी, नो डाउट इट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ओके, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन एंड आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं दिस इज द ओपन एंडेड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसकी जो लेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं रखनी है आप लोगों को, बहुत लॉन्ग भी नहीं रखनी, इट शुड बी मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर द एक्वायर्ड ट्रेट्स डिफर फ्रॉम द इनहेरिटेड ट्रेट। इट मीन्स आप लोगों को डिफरेंस लिखना है एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है। बच्चे दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक्वायर्ड ट्रेट एक ऐसा ट्रेट होता है जो इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन, ठीक है, जो उसने अपनी लाइफ स्पेंड करनी है उसके लिए जो उसने ट्रेट एक्वायर्ड करे अपनी सराउंडिंग में से, दैट इज द एक्वायर्ड ट्रेट। and this is the inherited trait. It is a special type of the trait that is controlled by the genes. जिनको कौन कंट्रोल करके रखता है, जीन्स कंट्रोल करके रखते हैं। एंड ये जो ट्रेट होते हैं ये ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन द एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट। जो हमारे एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं वो कभी भी वन जनरेशन से आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करते, ठीक है। ये तो लाइफ स्पैन है, मतलब उन्होंने सराउंडिंग में से अचीव करे हैं और उन्हीं के साथ जब उनकी डेथ होगी तो उसी के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दे विल नेवर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, बट इनहेरिटेड ट्रेट्स दे ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आई होप ये जो डिफरेंस है वो आप लोगों को क्लियर है। आई एम मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास, अ ब्लू कलर फ्लावर, एक ब्लू कलर फ्लावर है, इट इज डिनोटेड बाय BB, ये ध्यान रखना, इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन कैपिटल B एंड कैपिटल B। इट इज क्रॉस ब्रीड विद दैट ऑफ द वाइट कलर फ्लावर प्लांट, इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल b एंड स्मॉल b, लाइक दैट।
क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर हम व्हाइट कलर के फ्लावर को इस साइन से डिनोट कर रहे हैं तो जो हमारा ब्लू कलर का फ्लावर है इट इज डिनोटेड बाय साइन दिस। ओके, अब आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ए बी सी इसी के ऊपर बेस्ड हैं, आपने आंसर देने हैं। आपको क्वेश्चन देखो 1, क्या एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्टेट द कलर ऑफ द फ्लावर यू वुड एक्सपेक्ट इन द F1 जनरेशन प्लांट्स। ओके, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स ऑब्टेन करें हैं उनमें जो हमारे फ्लावर्स का कलर क्या होने वाला है। आप लोग देखिए फॉर द हमें पता है कि ब्लू कलर फ्लावर को हमने किस साइन से डिनोट करा, हम लोगों ने डिनोट करा लाइक दैट। ओके, और हमारे जो दूसरे जो व्हाइट कलर प्लांट्स हैं इनको हमने डिनोट करा बच्चे इस साइन से, कैपिटल स्मॉल b एंड स्मॉल b लाइक दैट। इट मीन्स इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं लाइक दैट, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ओके, अगर हम इनकी आपस में अगर हम क्रॉसिंग करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएंगे। यू विल गेट द आंसर लाइक दैट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, और अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द रिजल्ट लाइक दैट, एंड इफ दिस वन इज मल्टीप्लाइड विद दिस वन इट विल बी मल्टीप्लाइड लाइक दैट। इट मीन्स आप लोगों ने अभी स्टार्टिंग में देखा कि हमारा जो this one, these all are the blue colored flower, इनमें से कोई भी white color flower नहीं है, because of white color flower it is always denoted by like sign this। तो इसका मतलब क्या है कि state the color of the flower would you expect, तो हमारे जो flower का कलर होगा वो सबका कलर कैसा होगा, it should be blue color। clear? Now I am moving toward the next statement. What must be the percentage of white flower plants in F2 generation in flowers of F1 plant are self pollinated? अब हम देखते हैं F2 जनरेशन के लिए हमने किसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर दिस फ्लावर इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय दिस वन। ओके, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं लाइक दैट। इट शुड बी, ये तो आप लोगों को क्लियर ही है, तो दिस विल बी सेल्फ पॉलिनेटेड। हम लोगों को जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट दिस रिजल्ट, व्हेन दिस इज मल्टीप्लाई बाय दिस वी गेट दिस, और अगर हम इसको इससे करेंगे वी विल गेट दिस वन, एंड इफ लास्ट वन दे आर मल्टीप्लाइड बाय, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये आप लोगों को क्लियर है। और आप लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जो ब्लू कलर फ्लावर था उसको हमने इस साइन से डिनोट करा, एंड द व्हाइट कलर फ्लावर इट इज डिनोटेड बाय साइन लाइक दैट। अब आप यहाँ पर देखिए हमारे पास जो व्हाइट कलर फ्लावर है वो यहाँ पर आप लोगों को सिंगल व्हाइट फ्लावर ये इस तरीके से नजर आएगा, और जो 3 रिमेनिंग है दैट आर द ब्लू कलर्ड। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पर पूछा है व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ द व्हाइट फ्लावर प्लांट इन F2 जनरेशन। आप लोगों को पता होना चाहिए परसेंटेज जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ द व्हाइट प्लांट, इतने हमारे पास F2 जनरेशन में व्हाइट प्लांट है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ द प्लांट, टोटल प्लांट into 100। दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज। हमारे पास जो व्हाइट फ्लावर हैं आप लोग देख सकते हो इट इज इक्वल टू 1, एंड द नंबर ऑफ द फ्लावर that are obtained in F2 generation it is 4, and it should be divided by, not divided by, it is multiplied with the 100। हम cancel out करते हैं 4 like that, and the answer of this question it is a 25%। तो आंसर क्या होगा, वाइट फ्लावर की कितनी परसेंटेज होगी F2 जनरेशन में, इट इज 25%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिए, स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशो of the xenotypes BB and BB in the F2 progeny। अब आपने यहाँ पर रेशो फाइंड आउट करनी है। स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशो ऑफ द xenotypes of BB and this BB in the F2 progeny। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये आपके पास फ्लावर आ गए जो आप लोगों को F2 जनरेशन में फाइंड आउट करने थे। मैं इसको यहाँ पर आपके लिए लिख रही हूँ लाइक दैट, दिस वन। ओके, एंड दिस वन। अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर 3 ब्लू हैं, दिस इज ब्लू, दिस इज ब्लू, दिस इज ब्लू, एंड द वाइट जो है हमारे पास इट इज इक्वल टू 1। द रेशो दैट वी ऑब्टेन्ड इट इज 3:1। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये जो चैप्टर था ये जो विद द समरी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा, उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर के क्वेश्चंस देखे कि इस चैप्टर के कैसे क्वेश्चंस हैं। अभी बायो का चैप्टर है और आप लोगों को पता है कि बायो की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मेमोराइज करनी है, बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है, और ये जो क्वेश्चंस हैं बेटा ये कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प करेंगे बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करने में।
सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस पूछता है, किस तरीके से क्वेश्चन डाले जाते हैं, ये इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। आई होप आप इन वीडियोस को देखोगे, इनका फ़ायदा उठाओगे और आप अच्छे मार्क्स लेने में आपकी ये वीडियोस आपकी हेल्प करेंगे। इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।